here to discuss about how photosynthesis took place in steps. ठीक है, तो photosynthesis जो हमारा होता है वो 3 स्टेप में आकर करता है. photosynthesis take place in 3 steps. ओके, तो होता क्या है उस स्टेप में, कैसे कैसे क्या होता है वो हम लोग को देखना है. द फर्स्ट स्टेप जो हम लोग का वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. ओके, मीन्स हम लोगों ने क्लोरोफिल का नाम तो सुना ही होगा. क्लोरोफिल मतलब नाम तो सुना ही होगा. ओके, क्लोरोफिल क्या होता है, तो भाई ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की लीफ में पाया जाता है. ठीक है, और उससे क्या होता है, वो क्लोरोफिल जो होता है वो जो सोलर एनर्जी होती है उसको ट्रैप करता है. ठीक है, तो पहले क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है एनर्जी किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू. सेकेंड वन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी जो होती है, सोलर एनर्जी जो सन की एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. एंड देन जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और बाय लाइट एनर्जी. ओके, सो इट वाज इजी. एंड द थर्ड पॉइंट वाज reduction of carbon dioxide and hydrogen to form carbohydrate like glucose by utilizing the chemical energy. We have read it with the equation also, so I think you got it. And if you are getting any doubts, so you can comment down below. Okay, so now we are going to discuss the next topic. This is condition necessary for photosynthesis. Okay, so what are the condition which are necessary for photosynthesis? So there are 4 characteristic condition mentioned in our book. That is, first one is sunlight, second one is chlorophyll, third one is carbon dioxide, and the fourth one and the last one is water. ओके, तो इसको करने के लिए हमारे बुक्स में मतलब एनसीईआरटी में आई थिंक देयर आर 4 एक्सपेरिमेंट गिवन फॉर दिस. If you guys are understanding, so go to the NCERT and you will have the answer of your question. These experiments were given there. And if you guys are facing a minute or a little problem in understanding, so you can come here and comment down below that, ma'am, please understand, please make us clear the experiment. So I will make a video, particular video for you guys to understand this experiment. Okay, so today we are just reading it in short. Okay, and in writing videos it took some times and the video is going too long, so I just write down all notes and I'm teaching you here. Okay, so raw material for photosynthesis. What are the raw material? Means what are the things which are required for photosynthesis? So there are 3 things: carbon dioxide, water, and other material. Other material, what can be included as other material? So it can be nitrogen, phosphorus, iron, and then magnesium. Okay, got it? I hope you got it up to there. Now we are going to read nutrition and animal. We have read ना nutrition in plant की nutrition in plant कैसे होता है. So अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, nutrition in animal. हम लोगों ने मतलब nutrition in plant कर लिया, nutrition in animal का चांस है. ठीक है, तो अब हम लोग को पहले बेसिक चीज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल में एकदम नॉर्मल की मतलब अगर बच्चा कोई 9 तक नहीं भी पढ़ा तो उसको 10th में कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, सो आई नो यू गाइज आर, सम ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स नाउ विच नीड support, we need the basic concept being clear. So for them, so I would, as a teacher, so I would have to take all the students together and take them to the way, to the path of growth and development. Okay, so पहले ये जो हम लोग का बेसिक चीज दिया हुआ है, कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ के लिए नया होगा. Okay, I think majority of you know, but only the minor few student for whom I just have to mention all those things. Okay, so first of all, nutrition in animal. Nutrition in animal, that how animals get their nutrition. Okay, animals are heterotrophs. We all know that heterotrophs means what? Feeding or depending on other animals or plant. Okay, and hence they depend on other organisms for their food. As I told you कि मतलब heterotrophs मतलब ही क्या होता है, heterotrophs मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जो खुद who can't prepare their own food. The second point which is mentioned here is animals obtain their food from plant and other animal, as they are heterotrophs, so they have to do this plant. Okay, so animals जो होते हैं, ठीक है, वो plant and animal, we have further listened that plants and animals. So what type of, does they consume the mango tree, the banana tree, or, and if we are talking of animals, so does they eat cow, buffalo, these are also our elephant. So to make it clear, we have to understand here. Okay, the plant means plant मतलब किस plant को खाते होंगे, ऐसा नहीं है ना कि आम का पेड़ ही खा जाते होंगे, not like that.
प्लांट मीन्स वो वीट खाते होंगे, राइस खाते हैं, पर्ल्स खाते हैं, फ्रूट्स भी हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा. ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एनिमल, सो एनिमल मीन्स ये नहीं कि एनिमल्स को भी कंज्यूम किया जाता है, बट हियर मीन्स दैट एनिमल्स जो we can say that some animals eat animals, just like big fish is small fish, so these are, but what the basic things that like milk, curd, cheese and eggs, these are obtained from animals. Meat were also obtained from animals which are consumed by omnivorous or by which are carnivores. Okay, so many other animals obtain their food by eating the flesh of other animal. As I told you, fish, birds, snake and its insects all obtain their food from the other animals. I hope you all understand what I taught up to this. Okay, so the next topic, which is all the animal can be divided into three group on the basis of their, yeah, we had discussed about the mode of nutrition. Okay, so mode of nutrition, basically what does it mean? Mode of nutrition means method of procuring food. So animals are divided on the basis of their food habits. So we are talking this about when we talk of nutrition in animals, so basically we are talking of heterotrophic nutrition. Heterotrophic. Okay, they are not autotrophic when we talk of nutrition in animals. Okay, so heterotrophs are divided into three categories on the basis of their food habits. So first one is herbivores. Herbivores basically means the animal which eat only plants. Okay, example cow, goat, buffalo, dog, etc. When we talk of second category, so it is carnivores. Carnivores, those animal which eat other animal as food. Example lion, tiger, lion, vulture, snake, hawk, etc. Okay, omnivores, those animal which eat both plant and animal. Example man, dog, crow, sparrow, bear, ant, etc. It is taught to you in the smaller classes. I mean 4th, 5th classes they were taught, but I had to cover it just to make those students clear whose basic concepts are not clear and they can feel somewhat difficulty. So I don't think that if any student is coming to my channel and he had to face any type of difficulty, but if I'm working so hard and then also you are facing any difficulty, so write your problem in the comment box. I will try to solve this and make the next video on that topic. Okay, nutrition, I have told you 2 more times that what is nutrition, but again I'm telling you definition: the process of obtaining food and then using it for obtaining energy, growth and repair of the body. It is called nutrition. Means हिंदी भी समझ लो, इसका ऐसा ना हो कि बस इंग्लिश बोल दी मैं समझी ही नहीं तुम लोग. The process of obtaining food, food को obtain करने का एक process, ठीक है, and then using it, जो food हम लोगों ने obtain किया है उसको मतलब किस way में use करना है, तो obtaining energy को obtain करने के लिए, and for growth and then the repair of the body, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं. ओके, तो ये हो गया हम लोग का न्यूट्रिशन इन एनिमल. ओके, यहाँ पे मेनली जो 5 प्रोसेस हैं जो न्यूट्रिशन इन एनिमल में है. पहला जो है हम लोग का वो है इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन. सो वी हैव टू read it in this topic. So let's read one by one. Ingestion means क्या होता है, taking of food into the body. Means eating of food is also called ingestion. Suppose that we are putting our food into our mouth, so it is ingestion. Okay, and the second one is digestion, the process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecule is called digestion. मतलब जो food हम लोग खाते हैं, okay, the food we consume is made up of large insoluble molecules, but when we consume it, it is broken down into small pieces and water soluble molecules so that our body can absorb it, and after this the process can took place. Okay, the third process is absorption, the process in which the digested food passes through the intestinal wall into the blood stream. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो किसके थ्रू होके पास करता है, इंटेस्टिनल वॉल, जो इंटेस्टाइन होता है उसकी वॉल्स के थ्रू पास होता है, एंड ब्लड पास इनटू थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में इंटेस्टिनल वॉल के थ्रू जो डाइजेस्टिव फूड हमारा पास करता है तो उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन. ओके, and the fourth one is assimilation. What the assimilation means, the process in which the absorbed food is taken in by the body cell and used by for energy, growth and repair.
ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा जो फूड होता है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है, थर्ड है ना एब्जॉर्प्शन, जो हमारा एब्जॉर्ब फूड होता है, मतलब जब वो फूड हमारा ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के पास चला जाता है, तो उससे क्या होता है, जब फूड एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया, सेल्स टू सेल्स हो गया, उसके बाद क्या होता है, टेकन इन बाय ब्लड सेल, जब वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो वहां पे क्या होगा, वो बॉडी सेल के पास जाएगा एंड देन यूज फॉर एनर्जी के, फिर उसके बाद जब वो सेल के पास पहुंच जाएगा तो क्या होगा, फूड का हमारा उसका यूज होगा। यूज किस में होगा, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए। ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट, इट इज इंजेशन। This is the process in which the undigested food is removed from the body. Okay, तो जैसे कि हम लोग का फूड जो होता है ना, कि मतलब फूड जो होता है वो इन प्रोसेस के थ्रू जब गुजर जाता है तो उसमें यहाँ पे क्या होता है, जितने भी फूड के मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, जो इंग्रेडिएंट होती है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, वो यहाँ तक होके हमारी बॉडी को मिल जाती है। ठीक है, अब जो फूड बचा उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब हमारे यूज़ का कुछ नहीं होता। अब वो क्या होता है, एज अ वेस्ट मटेरियल होता है। तो वो वेस्ट मटेरियल जब हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म पे जाते हैं जिसका नाम है अमीबा। इट इज मेंशन इन आवर बुक। ओके, सो अमीबा के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो एकदम बेसिक है। ठीक है, ये हो सकता है आप लोग जानते भी हो सकता है आप लोग नहीं भी जानते हो। तो अमीबा क्या होता है, एक सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग यूनिसेलुलर एनिमल कह सकते हैं, मतलब वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर नहीं है। मल्टी सेलुलर मतलब दो या दो से अधिक सेल वाले, और यूनिसेलुलर मीन्स दोज हु हैव वन सेल। ओके, हु आर वन सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट विच इज अबाउट अमीबा इज अमीबा फीड अपन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग इन वाटर। अमीबा का खाना क्या होता है, जो वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी माइक्रोस्कोपिक मतलब ऑर्गेनिज्म फ्लोट करते हैं, दे भी प्लांट और एनिमल्स, अमीबा फीड अपन दैट। ओके, अमीबा का खाना वही होता है जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वाटर पे फ्लोट करते हैं। थर्ड क्या हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। वी विल डिस्कस इट आफ्टर दैट। ओके, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, अमीबा का जो प्रोसेस है ऑब्टेनिंग फूड का वो है फैगोसाइटोसिस। ओके, फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है सेल का फीडिंग। ठीक है, तो वहां तक हम लोगों ने अमीबा के बारे में नॉर्मल जो था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है इंजेक्शन, अब प्रोसेस क्या कैसे अकर करता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये बहुत छोटा दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, बट मतलब एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो ठीक है, बट यू नो व्हाट, टू स्टडी इज नॉट जस्ट ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और फॉर मार्क्स। हम लोग को आगे भी तो पढ़ाई की जरूरत पड़नी है, आगे भी तो हम लोगों को कुछ करना, 10th तक ही तो नहीं रह जाना है ना उसके बाद। ठीक है, तो मैंने ये एक ब्रीफ मतलब नॉलेज, वो ब्रीफ नहीं है, एकदम बेसिक है। ठीक है, ब्रीफ नहीं है, ये बेसिक है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि अमीबा का फूड कैसे मतलब वो होता है, वो कैसे अपना फूड कैसे क्या करता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ठीक है, तो पहला जो है वो इंजेक्शन है। इंजेक्शन क्या होता है, जैसे कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास माउथ तो होगा नहीं फूड को मतलब अपने अंदर करने के लिए, इंजेक्शन के लिए, टेकिंग ऑफ फूड। अमीबा डोंट हैव एनी माउथ। ओके, सो वो क्या करता है, बेसिकली उसकी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, तो अपनी सेल मेम्ब्रेन्स को कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेसिडोपीडिया। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं पेसिडोपीडिया। ओके, वो पेसिडोपीडिया का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद इसको ऐसे करता है, उसके बाद फूड को अपने सेंटर में रखता है। ठीक है, तो ये अपना फूड किससे इंजेस्ट करता है, यूजिंग इट्स पेसिडोपीडिया विच इज दिस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन ये मतलब इसके थ्रू फिर ये इंक्लूड कर लेगा, तो ये ऑब्वियसली इसके अंदर आ जाएगा फूड। ओके, सपोज दैट ये अगर ऐसे 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 ग्रो करे ऐसे, तो ये एक बन जाएगा, एंड इट इज नॉट एनीथिंग, आई जस्ट मेक इट टू शो दैट ये पेसिडोपीडिया। ओके, don't understand, it is the body of amoeba, it is the food and it is the nucleus and the body of amoeba. Okay, so second one is हम लोग का digestion. In amoeba food is digested in the food vacuole by digestive enzyme. अब ये जो फूड जो होता है वो जब अमीबा के अंदर आ जाता है, व्हेन इट इज इंजेस्टेड ना, तो इस फूड के अराउंड एक फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और अमीबा का जो फूड होता है ना वो उसी वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है, मतलब डाइजेस्ट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम में भी शो किया है कि यहाँ पे जो देखो ये जो है वो फूड वैक्यूल है, दिस वाज द फूड। Okay, and this is the food and this is the body of amoeba. These are the cytoplasm spread all over the body, and this is the enzymes coming, this were the enzymes. Okay, and this is the food vacuole, this is the food. So ये जो होते हैं एंजाइम जो होते हैं ना, ये फूड वैक्यूल्स के अंदर जाते हैं और उसका डाइजेशन करते हैं।
द एंजाइम फ्रॉम ये एंजाइम्स आते कहाँ से हैं? द एंजाइम फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू फूड वैक्यूल्स एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं इसके सराउंडिंग में, ठीक है, ये जो एंजाइम्स होते हैं इसके सराउंडिंग में वो फूड वैक्यूल्स के अंदर जाते हैं और डाइजेशन करता है। आई टोल्ड यू इट बिफोर दिस। सो थर्ड जो पॉइंट हम लोग का है वो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? Since amoeba consists of one small cell, it does not require blood system to carry the digested food. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या रहा है, जो अमीबा है हम लोग, ठीक है, वो वन सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बोला कि अमीबा इज यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी ब्लड सिस्टम टू कैरी द डाइजेस्टिव फूड. आई थिंक यू गॉट इट. ओके, सो डाइजेस्टिव फूड जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द होल बॉडी. उसके बाद क्या होता है, मतलब उसमें कोई ब्लड की जरूरत तो नहीं पड़ती है ना, जैसे कि हम लोगों में पड़ती है, हमारे बॉडी से, मतलब ब्लड से ही तो हम लोग सेल के पास जाते हैं एंड देन ग्रोथ रिपेयर ऑफ बॉडी टू प्लेस. ओके, बट ऐसा कुछ इसमें नहीं होता. इसमें क्या होता है कि वैक्यूल से ही जो फूड होता है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वो पूरी बॉडी में से बिखर जाते हैं. ठीक है, दे स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी ऑफ अमीबा. फोर्थ वन इज एसिमुलेशन. एसिमुलेशन क्या होता है? फूड एब्जॉर्ब इन अमीबा इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन. अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि फूड भाई एब्जॉर्ब हो गया अमीबा की बॉडी में. अब क्या होगा, जो फूड एब्जॉर्ब होता है अमीबा की बॉडी में, वो रिस्पायरेशन के मतलब रिस्पायरेशन के प्रोसेस में उसमें एनर्जी जनरेशन होती है. हम लोगों ने रिस्पायरेशन का एक वीडियो करके रखा है, यू कैन गो एंड वॉच दिस. वो भी मतलब कंप्लीट नहीं है बट वन पार्ट इज डन. ओके, तो रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है? जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड वी कंज्यूम. ओके, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू मेक द पार्ट ऑफ अमीबा सेल. जो रिमेनिंग पार्ट होता है फूड का, ठीक है, उसका रोल क्या होता है, मतलब जो फूड बच जाते हैं रिस्पायरेशन के बाद, उनका काम क्या होता है? तो वो क्या करते हैं? मेक द पार्ट ऑफ अमीबा सेल. वो अमीबा सेल का जो पार्ट होता है उसको बनाते हैं, विच लीड टू ग्रोथ ऑफ अमीबा. जिससे क्या होता है? अमीबा का ग्रोथ होता है. जैसे कि हम लोग भी देखो, ज्यादा जब खाना खाने लगता है कोई इंसान, मतलब बेसिकली देखा जाता है, जैसे कोई कभी कम खाना खा रहा होता है और जब वो अचानक से ज्यादा खाना खाने लगता है तो देखते हैं कि उसकी साइज बढ़ रही है, उसका मास बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ता है. ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी है, फूड जब वो होता है तो उससे फिर अमीबा की बॉडी बढ़ रही है. Thus, an assimilating food amoeba grows in size and then divide into two daughter cells. अमीबा क्या होता है? अमीबा ग्रो करता है साइज में एंड देन डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. अब ये कैसे डिवीजन होता है, आई कैन टेल यू हियर, बट ये हमारे रिप्रोडक्शन के चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है, तो यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच. ओके, सो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इजेशन है. ठीक है, इजेशन में क्या होता है? when considerable amount of undigested food collect inside amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and undigested food is thrown out. As I told you that amoeba एक single cell organism है, उसके पास कोई भी मतलब special organ नहीं होता है. तो special इजेशन में होता क्या हम लोग का, मतलब जैसे कि अमीबा के पास कोई माउथ वगैरह तो होता नहीं है, तो अमीबा का क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किसी एक जगह से रैप्चर हो जाता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ ऐसे बाहर चला जाता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि अमीबा में मतलब फूड का न्यूट्रिशन कैसे होता है. अब हम लोग को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो मैंने इसमें ऐसा कुछ खास नहीं किया है कि मतलब आपको पूरा क्योंकि अगर हम लोगों ने डेफिनेशन लिख के किया होता तो उसमें टाइम लगता है. मैंने ये एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो बहुत इजी है, मतलब ये एकदम क्लियर डायग्राम है, यू कैन ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ. मैं इसको ऐसे डायग्राम के थ्रू ही समझा दे रही हूँ. इन वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें कुछ सीक्वेंस होता है कि किस सीक्वेंस में जो फूड पार्टिकल है वो मूव करेगा. तो जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? माउथ टू एसोफेगस एंड देन टू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और उसमें कुछ ग्लैंड जो होती हैं वो होती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज. ओके, सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, यहाँ से हमारे ये माउथ है. ठीक है, माउथ से हमारा जो फूड होता है ये यहाँ से आता है. ये हम लोग का क्या होता है? इसी को हम लोग, ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं. ये फूड पाइप है. ठीक है, ऐसा पाइप जो फूड को ले जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फूड पाइप होती हैं इसमें कोई बोन्स नहीं होती हैं, हाँ, बट इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है. पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती क्यों है? क्योंकि इसमें कोई बोन्स नहीं है. कोई बोन्स नहीं है तो दे कैन कोलैप्स ईच अदर ना. सपोज दैट कि अगर मतलब कोई मस्कुलर चीज है, सपोज दैट यही है, ये
अगर हार्ड ना हो, ये मसल्स का बना हुआ हो, ये जो कैप मैं आपको शो कर रही हूँ ये अगर मसल्स का बना हो तो ये चिपक सकता है आपस में, इसके ये दोनों जो वॉल्स हैं वो चिपक सकते हैं आपस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, बट क्योंकि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या है, ये जो ऐसा मूवमेंट होता है, ठीक है, समझो जो नागिन का चाल होता है, नागिन डांस तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है, वही जो होता है वो उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। आई नो नागिन डांस इज समटाइम समथिंग जस्ट लाइक listening to odd in bio, but to make you guys interested in the video, I just have to use this word, okay, by will or by force। तो ऑसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का टंग होता है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, जहाँ जो मतलब हमारे से जहाँ से हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा को हम लोग लार ग्रंथि भी बोलते हैं, एंड इसको इन द मोस्ट इजिएस्ट टर्म मतलब हिंदी में हम लोग लार बोलते हैं। ओके, जो हमारे माउथ में जो वाटर लाइक सब्सटेंस हमेशा आता रहता है वो इसी सैलिवरी ग्लैंड से होता है। और ये सैलिवरी ग्लैंड करता क्या है, तो हमारे माउथ में जो फूड होते हैं उसको मतलब ब्रेक डाउन करता है। ओके, सो एंड जब ये मिक्स हो जाता है हमारे फूड से, तो हमारा फूड जो होता है समवट पेस्टी टाइप का हो जाता है। आफ्टर ग्राइंडिंग बाय टीथ ये समवट पेस्ट टाइप का हो जाता है, एंड देन इट मूव थ्रू द ऑसोफेगस। ऑसोफेगस के बाद यहाँ पे ऑसोफेगस के मतलब जहाँ पे ये होता है, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम होता है। यहाँ से ये आता है स्टमक में कुछ आवर रहता है, और यहाँ पे अबाउट 2 और 3 आवर इट इज बीइंग चर्न। इसके जो वॉल्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो फूड यहाँ पे भी होता है। आफ्टर दैट द फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन फर्स्ट इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू दिस वे। ओके, through this way it goes to there, and after this is moved to the large intestine, and this it move out of the body. You know what, I know it is the very shortest video, but it was okay। and ये अभी तक का था हम लोगों ने जो भी पढ़ा। अभी कुछ टॉपिक्स बाकी है जो हमारे न्यूट्रिशन में रहना था, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को पूरा सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, ये डायग्राम के थ्रू था। अब कैसे कैसे क्या हुआ